So hello everyone. As in the previous lecture, we have discussed the basic about refractory material, and we have also discussed some basic properties that the refractory materials are required to have. In this lecture, we will be discussing some more properties required for the refractory material. So in the previous lecture, the property was the specific gravity. So obviously, specific gravity indicates the weight, whether it is light or heavy. Okay, so when your refractory material is light, obviously its specific gravity will be low, but cost will also be low, but the strength will something less. The next property is spalling. Okay? The spalling is generally relates the fracture of the refractory brick. It generally represents the fracture of the refractory brick. Obviously, this brick is also a refractory material, which may occur due to the following reason. So, the spalling is the fracture of refractory brick. अगर कोई refractory brick है आपकी, वो spalling की वजह से fail होती है, तो वो spalling होता है. ठीक है, spalling means the fracture of refractory brick. जब आपकी refractory brick fracture हो जाती है, तो वो आपका spalling के अंदर आता है. And the various reasons for the fracture of this the brick due to the spalling are: first is a temperature gradient in the brick. Let's suppose this is your brick, and the temperature at this side is 1000 degrees centigrade, and along this side is 80 degrees centigrade. So this temperature difference is also responsible for spalling, due to which the brick may fail. Second is the compression in a structure of refractory due to the expansion. Okay, so whenever suppose that this is your brick and it is fixed, let's sometime here we have also brick and this is also brick. There is another material, here is another material, and the difference between this brick and this material is very less. Okay, the length difference. So when it is expanding due to the temperature, obviously the expansion will try to will exert a reaction in this direction. तो क्या होगा, ये एक्सपेंड होगा, तो एक्सपेंड होने की वजह से, क्योंकि ये जो साइड्स हैं वो फिक्स हैं, तो होगा क्या, ये जो साइड्स होंगी ये क्या करेंगी, इस ब्रिक के एक्सपेंशन को रोकेंगी. ठीक है, जब ये रोकेंगी तो इसमें एक कंप्रेशन फोर्स डेवलप हो जाएगा, जिस वजह से आपकी ब्रिक जो है वो फेल हो जाएगी कंप्रेशन की वजह से. ठीक है, तो एक्सपेंशन जब होगा, तो एक्सपेंशन के लिए जब जगह नहीं मिलेगी ब्रिक को, तो वो कंप्रेस हो जाएगी, और कंप्रेस होने की वजह से वो फेल हो जाएगी. थर्ड वन इज द वेरिएशन इन द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बिटवीन द सरफेस लेयर एंड द बॉडी ऑफ द ब्रिक. सपोज मान लिया कि ये आपकी ब्रिक है, ये आपकी सरफेस लेयर है, और ये आपकी बॉडी है, ब्रिक की ये बॉडी है. तो यहाँ पर और यहाँ पर थर्मल कोएफिशिएंट अलग अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा, ड्यू टू द change in the material property. So the variation in the thermal coefficient is also responsible for the spalling. And the last is the variation in the coefficient of thermal expansion between the surface layer and the body of the brick due to the slag penetration or due to the structural change. तो वही है कि अगर जब टेम्परेचर चेंज होगा तो यहाँ स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, आपकी जो ब्रिक है वो स्पेलिंग की वजह से फेल हो जाएगी. सो स्पेलिंग इज अ फिनोमिना ड्यू टू विच द ब्रिक फेल्स. ठीक है, ब्रिक जो है आपकी ईंट जो है वो फेल हो जाएगी स्पेलिंग की वजह से. मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज अ पीएलसी, दैट इज परमानेंट लीनियर चेंज ऑन रीहीटिंग. जब आप अपनी ब्रिक को या आपके रिफ्रैक्टरी मटेरियल को रीहीट करते हो, तो उसकी लेंथ में एक परमानेंटली चेंज हो जाता है. तो उसके बेसिस पे ही हम लोग, दिस इज अनदर प्रॉपर्टी. So in material, certain permanent changes occur during the heating, and these changes may be due to, कोई भी रिफ्रैक्टरी मटेरियल हो, आप जब उसको हीट करते हो तो उसमें कुछ ना कुछ परमानेंट चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं. और वो चेंजेस किस वजह से हो सकते हैं, चेंज इन द एलोट्रोपिक फॉर्म. ठीक है, वो जो उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म है, किस टाइप की फेजेस है उसकी, किस टाइप में स्ट्रक्चर है, वो चेंज हो सकता है. केमिकल रिएक्शंस हो सकती है अंदर, मान लिया ब्रिक के अंदर कोई ऐसा मटेरियल है जो हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट कर सकता है, कोई ऐसा मैटर प्रेजेंट है, तो हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट होने की वजह से आपकी मटेरियल में एक परमानेंट लीनियर पीएलसी हो जाएगा, परमानेंट लीनियर चेंज हो जाएगा. लिक्विड फेज फॉर्मेशन, लिक्विड फेज भी फॉर्मेटिव हो सकती है, एंड सेंटरिंग रिएक्शंस. ठीक है, तो दीज आर द रीजंस ड्यू टू विच द पीएलसी, परमानेंट लीनियर चेंजेस में अकर इन योर रिफ्रैक्टरी मटेरियल. These changes determine the volume stability and expansion and shrinkage of the refractory at the high temperature. जनरली वॉल्यूम स्टेबिलिटी के बारे में बताता है, एक्सपेंशन और श्रिंकेज के बारे में बताता है, आपके रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स के बारे में. अगर लेंथ चेंज हो रही है, अगर पॉजिटिव है डेल्टा एल,
डेल्टा एल अगर पॉजिटिव है ऑब्वियसली इट इज एक्सपेंडिंग, डेल्टा एल अगर नेगेटिव है तो इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग। तो आपकी ब्रिक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, एक्सपेंड हो सकती है। रिफ्रैक्टिव मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एक्सपेंड हो सकता है। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी which is thermal conductivity. Obviously thermal conductivity of the brick determines heat losses. thermal conductivity ज्यादा अगर होगी तो heat loss जो होगा brick से वो ज्यादा होगा। अगर thermal conductivity है आपकी, जैसे मान लीजिए thermal conductivity और ये Q, अगर thermal conductivity ज्यादा होगी तो heat loss ज्यादा होगा, thermal conductivity कम होगी तो heat loss कम होगा। ठीक है। ऑल्सो अगर पोरोसिटी है तो पोरोसिटी होने की वजह से क्या होगा, थर्मल कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, लेकिन एट द सेम टाइम डिक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑल्सो। तो अगर थर्मल कंडक्टिविटी जैसे मान ली आपकी ईंट है या ब्रिक है या रिफ्रैक्टिव मटेरियल है, अगर ये अंदर से थोड़ा बहुत इसमें पोर्स हैं तो क्या होगा, ये लाइट तो होगी, साथ के साथ इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और थर्मल कंडक्टिविटी भी कम रहेगी इसकी। ठीक है, हीट लॉस को ये कम करेगी। नेक्स्ट इज द बल्क डेंसिटी। तो बल्क डेंसिटी जनरली इंक्रीजेज द वॉल्यूम स्टेबिलिटी एंड हीट कैपेसिटी। बल्क का मतलब होता है उसका मास कितना है, उसके अंदर कितना हैवी है। सो दिस इज अनदर प्रॉपर्टी। ओके, सो हियर वी हैव फिनिश्ड सम important properties required for the refractory materials. So if I think there are 7 to 8, 9 properties we have discussed, and these properties are required in a refractory material. So sometime the question may ask, write down the properties required in the refractory material. So you have to explain each and every property that I have discussed in the previous lecture and till now. Okay, moving to the next, that is the types of refractory materials. So the refractory materials are classified on the two bases. First, on the basis of the chemical composition, and second is another parameters on which we have classified the refractory material. So on the basis of chemical composition, the refractories are nothing but refractory materials. Refractory materials are also called as refractories. Okay, there is a single word for refractory material which is called refractories. So refractories are composed of either single or multi-component inorganic compounds with non-metallic elements. तो जो आपके refractory material होते हैं उसमें या तो सिंगल कंपोनेंट के हो सकते हैं वो, या मल्टी कंपोनेंट हो सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। फर्स्ट अगर हम इसको अगेन क्लासिफाई किया गया केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे, पहला है एसिड रिफ्रैक्टरी। ठीक है, एसिड रिफ्रैक्टरी वो रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स होते हैं इन विच द मेन रॉ मटेरियल्स आर सिलिकॉन ऑक्साइड, जिरकोनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनोसिलिकेट. If these materials are present in the refractory materials, then we can say these are acid refractory. These refractories that are acid refractories are used where slag and atmosphere are acidic in nature. जो भी स्लेग फॉर्मेशन होता है, जो स्लेग बनती है और जो भी एटमॉस्फेरिक हो सकता है, जहां पर आप रिफ्रैक्टरी मटेरियल को लगाना चाहते हो, मान लीजिए स्टील प्रोड्यूस कर रहे हो, तो स्टील प्रोडक्शन में अगर वहां पर स्लेग जो है और एटमॉस्फेरिक आपका एसिडिक नेचर का है, वहां आप एसिडिक रिफ्रैक्टरी यूज करेंगे. ठीक है, दीज रिफ्रैक्टरी कैन नॉट बी यूज इन द बेसिक कंडीशन. तो बेसिक कंडीशन अगर है तो वहां पर आप इनको नहीं यूज करोगे. अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कहीं अगर एसिडिक रिएक्शंस हो रही हैं, तो उस केस में आप जो रिफ्रैक्टरी यूज करोगे वो एसिडिक रिफ्रैक्टरी यूज करोगे. ठीक है, इनके जो एसिडिक रिफ्रैक्टरी के कुछ नाम है, जिसमें आपका फायर क्ले हो गई, वो आपके एसिडिक रिफ्रैक्टरी है. क्वार्ट्ज क्रिस्टल हो गया, इट इज ऑल्सो रिफ्रैक्टरी. सिलिका, these are acidic refractory. Okay, so you should know some basic examples of acidic refractory and what are acidic refractory. Acidic refractories are those refractories in which the raw material contains silicon dioxide, zirconium dioxide, silicon oxide, silicon dioxide, zirconium dioxide and aluminosilicate. ये है तो वो acid refractory होगा. Next is the basic refractory. Basic refractory is those refractory in which the raw materials used for the refractory are calcium oxide, magnesium oxide, dolomite, chrome magnesite. If these things are present, it is basic refractory. And basic refractories are produced from a composition of dead burned magnesite, dolomite and chrome ore. ठीक है, क्रोमियम और क्रोम ओर हो गया और डोलोमाइट बर्न मैग्नेसाइट्स हो गए. इन सबसे आपके बेसिक रिफ्रैक्टरी फॉर्म होते हैं. सो वाटर मैग्नेसाइट, ये जो भी चीजें आप लोगों को बता रहा हूं इसी के अंदर है, ये बेसिक रिफ्रैक्टरी के अंदर. कि अभी जो नाम मैंने आप लोगों को बताए हैं कि ये क्या क्या होते हैं. ठीक है,
ये देखो, ये डोलोमाइट मैग्नेसाइट। तो क्या क्या चीजें हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सकते हो, इसको जरूरी नहीं है पढ़ सकता। मैग्नेसाइट की बात करेंगे, क्रोम कॉम्बिनेशन, मैग्नेसाइट क्रोम कॉम्बिनेशन हैव गुड रेजिस्टेंस टू केमिकल एक्शन, बेसिक स्लेग और मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो ये वॉल्यूम स्टेबिलिटी भी रहती है क्रोम मैग्नेसाइट की वजह से, स्लेग केमिकल एक्शन से रेजिस्टेंस मिलेगा हमें, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी मिलेगी। मैग्नेसाइट दो टाइप के होते हैं, एक तो क्रोम कॉम्बिनेशंस होते हैं क्रोम, और अगले होते हैं कार्बन रिफ्रैक्टरी, जिसमें कार्बन की प्रेजेंस होती है। सो कार्बन मैग्नेसाइट कार्बन रिफ्रैक्टरी विद वेरिंग अमाउंट ऑफ कार्बन हैज एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक बाय स्टील मेकिंग स्लेजेस। तो जब अब स्टील की फॉर्मेशन होता है तो उसमें तीन चीजें होती हैं, एक तो स्टील का वो होता है, एक स्लेग होता है, और एक और बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो उस टाइम पे हम कार्बन रिफ्रैक्टरी यूज करते हैं। क्रोमाइट क्या होता है, मैग्नेसाइट रिफ्रैक्टरी है एक तरीके से, यूज्ड इन साइड वॉल्स ऑफ सोकिंग पिट्स, जो आपका बेसिक रिफ्रैक्टरी होता है उसकी साइड वॉल में यूज करते हैं। एक है मैग्नेसाइट बेसिक रिफ्रैक्टरी इन नेचर। तो ये मैग्नेसाइट के बारे में थोड़ा सा, ये सारे पैरामीटर्स के ये क्या क्या होता है इनके बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन है, तो ये चीजें आप देख सकते हो, थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टरी मटेरियल में एक है आपका न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी, ठीक है। बेसिक रिफ्रैक्टरी हो गया, एसिडिक रिफ्रैक्टरी हो गया, और थर्ड वन इज द न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी, ठीक है। न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी क्या होता है, न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी इज केमिकली स्टेबल टू बोथ एसिड्स एंड बेसिस। तो एसिड होते हैं, बेस होते हैं, अम्ल और क्षार जो होते हैं, हिंदी में बोला जाए तो अम्ल और क्षार जो होते हैं उनमें दोनों में स्टेबल रहते हैं, ठीक है। दे आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम एल्यूमिना Al2O3, क्रोमियम ऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड Cr2O3 एंड कार्बन, इन सबसे मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। तो पहला हमने केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे हम लोगों ने उनको क्लासिफाई किया था। द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ ये भी हो जाएगा, नोट ए, ये भी होगा, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फॉर्म, ठीक है। उनकी फिजिकल फॉर्म कैसी है उसके बेसिस पे भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ब्रॉडली स्पीकिंग द रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स आर आइदर ब्रिक्स और मोनोलिथिक। तो अगर हम फिजिकल फॉर्म की बात करेंगे तो उसमें दो होते हैं, पहला आपकी ब्रिक्स होती हैं और दूसरा आपका मोनोलिथिक होते हैं, ठीक है। ब्रिक्स क्या है, ब्रिक शेप्ड रिफ्रैक्टरीज होते हैं। आप लोगों को पता है कि जो ब्रिक होती है वो रिफ्रैक्टरी मटेरियल से हमारा, और उनको शेप किया जाता है, पहले से एक सांचे में ढला जाता है। दीज आर शेप्ड रिफ्रैक्टरीज आर इन द फॉर्म ऑफ ब्रिक्स ऑफ सम स्टैंडर्ड डायमेंशन, ठीक है। So bricks are shaped refractories in the form of bricks of some standard dimensions. These refractories are machine pressed, मशीन से इनको प्रेस किया जाता है, have uniform properties, क्योंकि लगभग मिट्टी जो हम बनाते हैं वो प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म रहती है, क्रॉस सेक्शन लगभग यूनिफॉर्म रहता है। स्पेशल शेप्स विद रिक्वायर्ड डायमेंशंस आर हैंड मोल्डेड एंड आर यूज्ड फॉर पर्टिकुलर फर्नेसेस, ठीक है। उनको हैंड मोल्ड किया जाता है और पर्टिकुलर फर्नेस के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। सो द डिफरेंट टाइप्स आर, अब इसके भी टाइप्स हैं, ब्रिक्स भी आपकी कई टाइप की होती हैं। रैमिंग रिफ्रैक्टरी मटेरियल, ठीक है। दीज टाइप्स ऑफ ब्रिक्स इज इन लूज ड्राई फॉर्म विद ग्रेडेड पार्टिकल साइज, दे आर मिक्स्ड विद वाटर फॉर यूज। वेट रैमिंग मासेज आर यूज इमीडिएटली ऑन ओपनिंग। तो आप गीली मिट्टी को वेट कर लेते हो, मतलब उसको फिर रैम कर लेते हो। दूसरा होता है कास्टेबल्स रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स, These contains binder, इसमें हम लगाते हैं, जैसे एल्यूमिनेट सीमेंट रहता है, which imparts hydraulic setting properties when mixed with the water, ठीक है। ये these are the second types. These materials are installed by casting and are also known as the refractory concretes. इनको refractory concrete भी बोलते हैं। तीसरा होते हैं आपके mortars. These are finely ground refractory materials which become plastic when mixed with water. जब आप वाटर के साथ मिक्स कर दोगे तो ये प्लास्टिक फॉर्म में आ जाएंगे। These are used to fill प्लास्टिक तरीके, these are used to fill the gap created by a deformed shell. अगर कोई सेल डिफॉर्म हो गई है और उसके बीच में अगर गैप को फिल करना है तो इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीके से जो आपका प्लास्टर टाइप का होता है। एंड यूज टू मेक वॉल गैस टाइट एंड टू प्रिवेंट स्लेज पेनिट्रेशन। ब्रिक्स आर ज्वाइंट विद मोटर्स टू प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर। वह ये जो गारा हमारा रहता है ना, ब्रिक्स को जोड़ने के लिए गारा लगाते हैं ना, वही आपका मोटर होता है। अगला है आपका प्लास्टिक रिफ्रैक्टरी। तो दीज आर पैक्ड इन मॉइस्चर प्रूफ पैकिंग एंड पिकिंग आर ओपन एट टाइम ऑफ यूज। तो जब आपको यूज करना उसी टाइम पे इसकी पैकिंग को हम लोग ओपन कर लेते हैं।
these have high resistance to corrosion. तो ये रिफ्रैक्टरी आपके कोरोजन को हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो पहले टाइप की हो गई, ब्रिक्स हो गई। अब जो दूसरे होते हैं वो मोनोलिथिक रिफ्रैक्टरीज होते हैं। तो मोनोलिथिक रिफ्रैक्टरीज आर रिप्लेसिंग कन्वेंशनल ब्रिक्स रिफ्रैक्टरीज इन स्टील मेकिंग एंड अदर मेटल एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज। तो कुछ इंडस्ट्री जहां पे आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो उनमें हम ब्रिक्स की जगह पर क्या करेंगे, ये मोनोलिथिक रिफ्रैक्टरीज को यूज करेंगे। और ये हालांकि बहुत जल्दी से रिप्लेस कर रहे हैं ब्रिक्स को। मोनोलिथिक रिफ्रैक्टरीज आर लूज मटेरियल्स विच कैन बी यूज टू फॉर्म जॉइंट फ्री लाइनिंग्स, ठीक है। जॉइंट बन जाएंगे आपके, वो जॉइंट जैसे ब्रिक आप कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे जॉइंट बना है, लेकिन जब हम मोनोलिथिक रिफ्रैक्टरीज की बात करेंगे तो उसमें जॉइंट वगैरह कुछ नहीं रहते हैं। द मेन एडवांटेजेस ऑफ मोनोलिथिक्स आर ग्रेटर वॉल्यूम स्टेबिलिटी अच्छी रहती है, स्पेलिंग टेंडेंसी अच्छी रहती है, जॉइंट को इसमें ना के बराबर रहते हैं, जॉइंट नहीं होते हैं। इनको कैन बी इंस्टॉल इन हॉट स्टैंड बाई मोड, अगर कहीं गर्म कंडीशन में इनको यूज करना है तब भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो और इनका ट्रांसपोर्टेशन इजी रहता है। मोनोलिथिक रिफ्रैक्टरी कैन बी इंस्टॉल्ड बाई कास्टिंग स्प्रिंग, दीज आर द टेक्निक्स and ramming masses are used mostly in the cold conditions so that desired shapes can be obtained with the accuracy. Okay, so next is the insulating materials क्या क्या है, तो ये आप लोग खुद से पढ़ लेना, ठीक है। ये आप लोग खुद से पढ़ लेना। मैं इंसुलेटिंग मटेरियल्स याद रखना, जो सेरामिक फाइबर्स होते हैं वो एक तरीके से काफी सेरामिक मटेरियल हमारे पास या जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल ऐसे होते हैं जो इंसुलेटिंग मटेरियल का भी काम करते हैं। और जिरकोनिया, टाइटेनियम, सिलिका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं, इनको याद रखना, ठीक है। एक बार पढ़ लेना इंसुलेटिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, इतना ही बहुत है, ठीक है। जनरल जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है बस याद रखना है। इंसुलेटिंग मटेरियल्स दो मटेरियल विच डू नॉट ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हीट को ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। हीट रिलीज नहीं करते, हीट लॉस को खत्म कर देते हैं, कम कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। तो इनके लिए थर्मल कंडक्टिविटी की जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। जैसे आपका ग्लास वुल हो गया, ठीक है, ये आपका रिफ्रैक्टिव मटेरियल है। एयर भी एक तरीके से रिफ्रैक्टरी की तरह काम, इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह काम करती है, इंसुलेटिंग एलिमेंट है ये। तो ग्लास वुल ये सारे आपके रिफ्रैक्टरी हैं, ठीक है। चलिए, तो ये वाला जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स का टॉपिक जो है वो आपका यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और दूसरे किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।